फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू त्रिपुरा, सब जन इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, इनका टीबीएस बैंक में लगा। इट इज आवर ग्रेट थिंग, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो एवरीवन से यार कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड शी विल गाइड अस कि इसमें कैसे करके क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। मेरे पास नोट्स भी है, आप अगर शेयर करना चाहे तो आप शेयर करोगे त्रिपुरा? सर यू आप, शेयर इट सर। हम शेयर करें। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए हाँ फटाफट, मैं जल्दी करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए जल्दी जल्दी। थैंक यू Congratulations. ठीक है, बहुत अच्छी बात। थैंक यू दो मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर आई वांट टू शेयर सम थिंग्स ना। बोलिए बोलिए जरूर। एक्चुअली हाँ पार्टी ओके सर एक्चुअली our first session was on 23rd July I think so. हाँ And so, sir, call came on 24th. Are you interested to give an interview with DBS? And I said yes, actually. Even after you said that don't give any interview till campus placements, I gave the interview because I don't feel like saying no. ग्रेट। And sir, you in the very first session you guided me that before giving any interview you have to know something about the company. And also, sir, I did the same and I studied their annual report and went for the first round of interview, sir. And it really cleared me, it really helped me to clear half of the questions. See, Great. the very first question they asked is, what do you know about our bank? If I just went like a fool, I would become blank for the first question only. They asked the very first thing, what do you know about our bank? And why did you want to work with us? And the second question is, what do you know about our recent achievements? And why do you think we are hiring for this role? ग्रेट ग्रेट। कुछ तो है। ये सब क्वेश्चन पूछा आपको, राइट? हाँ सर। ये सब तो करवाया था, हाउ टू And टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब करवा हाँ दिया। सर। इनवॉइसिंग मोटामोटी, हाँ। हाँ सर। इनवॉइसिंग का रूल निकला है। व्हाट इज द रिस्क दैट यू हैव, व्हाट The कंट्रोल। behavioral questions you made us practice now, they also helped me a lot. interested in this role are in the better opportunities for CAs out. हाँ ये भी पूछ लिया आपको, आर यू बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सीए आउट देयर? हाँ सर। हैव एनी क्वेश्चन फॉर Actually, अस? I didn't. ओके, टेल अस अबाउट व्हाट इज आर्टिकल सी, फाइनेंस इन बैंकिंग, डू यू हैव एनी मेजर असाइनमेंट्स, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल बहुत पूछा है आपको, साथ करवाइए थे। हाँ सर। ग्रेट। काउंटिंग एंट्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोल्स, deferred tax asset, deferred tax liability, deferred tax asset treatment, TDS provisions. Explain a bit about GST mechanism. Can you flexible with all the rules in all the domains? The real, हाँ. How can practically apply? Do you have any questions for us? Almost सारा तो हमने cover करा ही दिए। Tell me salary expectations and all, हाँ। तो ऑलमोस्ट सारा ही ये सब करवा ही दिया था ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ था नहीं हाँ मतलब। सर। मतलब ऐसा हमको लगा कि कुछ अलग होगा, पर ऑलमोस्ट सब मैच ही कर रहा था मतलब आपका। कुछ ऐसा दो तीन चीज जो आपको लगा लाइक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज, व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट दे वर चेकिंग? कि क्वेश्चन सब हम लोग का यहाँ से ही आया है ऑलमोस्ट, जो आपको लगा कि लाइक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर एन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रेसिंग Sir, सेंस। I thought behavioral questions are very important, sir, because even we can manage with the technical questions, but practicing behavioral questions, I felt it is a bit important than working on technical questions. And like what type of behavior questions you faced ki they were trying to test, like what type of questions and what you gave answer like? Sir, the thing I face most difficult is why should we hire you? Because I don't know why Okay, should they hire me what you until said? you told me. Okay, okay. And what you said in this? Second, no? Job description and went na. So I told that I am very compatible with the job description and it, and I
went with the flow exactly. Don't remember what. Okay. And next question, what once you can repeat this question because the net was why should we hire you? What you said? Sir, I read the job description and went for the interview, sir. So I said I have very good experience with the areas you mentioned in the job description, and I also explained them how I had the experience in those areas during my articleship, and I also explained them how I am good with how I am compatible with their team culture and their requirements their requirements from a person. And also I mentioned that I'll also be willing to learn new things if it requires for that role. Okay. Any other question which you faced, like this was the question was little difficult, like Let me check tricky. on it for once. I have this. And what you told about what you know about DBS Bank? Sir, I read the annual report and went, sir, I used some numbers and figures from it, and How many minutes you told this I answer? also, What do you know about the? sir, Uh, sir, I told the answer for about a minute. What do you know about DBS Bank? I did some research before going to the interview. So I said I also analyzed their financials a bit, like how much are their assets and what is their profit and how is it growing actually, and also their recent merger with Lakshmi Vilas Bank also. And so I also read the audit report and I noted down some points as you said in the first session, sir, and I said them those points. And the interviewer actually felt very good after that question. I can feel it because actually. see, every company wants to know about themselves because the industry, what happens in industry, बिग फोर को लगता है आपको आर्टिकल इन बिग फोर व्हाट हैपेंस ना बिग फोर को लगता है कि आपका आर्टिकल सिर्फ अच्छा है खराब है क्योंकि वो सीए फर्म है तो आपको वो उसको पता है आपके बारे में क्योंकि सीए फर्म है तो सीए फर्म को आपके बारे में पता है कि इसको कुछ आता है नहीं आता है उसको पता है समझ गए क्या इंडस्ट्री क्या हो गया ना इंडस्ट्री इज समथिंग उसको लगता है टेक्निकली तो इसको आता ही होगा सब कुछ इंडस्ट्री परसीव्स यू दैट यू नो आर्टिकलशिप यू हैव डन गुड आर्टिकलशिप तो टेक्निकल नॉलेज तो होगा ही इसको मेरा कंपनी के बारे में क्या पता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक आईओसीएल में जाओ रिलायंस में जाओ टाटा में जाओ ब्रिटानिया में जाओ एशियन पेंट में जाओ इसको इंडस्ट्री का नॉलेज कितना अच्छा है वो चेक करना बहुत चाहता है बिकॉज वो लोग को लगता है इसको तो टेक्निकल नॉलेज तो 19-20 हो गई सॉफ्ट स्किल देखता है एंड अपना कंपनी का नॉलेज वो देखना चाहता है वो और वो इंटरेस्ट है कि नहीं है इसमें इंटरेस्ट तो देखेगा ही देखेगा वो ये नहीं कि भाई टाइम पास के लिए आ गए इधर पे इंटरेस्ट है कि नहीं है बस ऐसे टाइम पास के लिए तो नहीं आ गया कहीं पर नहीं था तो आ जाता है और पैसा के लिए तो नहीं आ गया ये तो आपको पूछा था व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन आपने क्या बोला Sir, I already know what is the range, so I managed it between the range, sir. I व्हाट इज also told them that I will be open for any kind of negotiation, and I did some market research. What are the other companies offering for the same domain, and I'm okay with the industry standard. okay you said you did the market research and this is the range 14-15 lakh Yes, sir. this you said okay Yes, sir. they did not say you that you And are I also told them that they I do am not open say you to that negotiation also. they do not say you that your research is wrong like this that No, you sir, are they you told are me that your research is right. They told me that your okay research is right actually. very good. That's why research has to be right. If you use the word research, then your Sir. research has to be right also. It's not that I read the research and I think your salary offered is 20 to 25 lakh. Your research is wrong, you're going to get rejected. Remember this also. Your research has to be good. ज्यादा मत बोल देना Sir, I think, कम बोलने से ठीक है sir. ज्यादा मत बोलना पर रेंज भी ऐसा बताना कि 10 to 15 लाख मत बोलना 10 to 20 लाख ऐसा रेंज मत 12 to 15 लाख रेंज छोटा होना चाहिए याद रखें रेंज ऑलवेज शुड बी स्मॉलर 12 to 15 lakh which she said right very good where they asked you Sir, where you did the research I
Very Sir, detailed. no, sir, they didn't ask me. They didn't ask you. If they asked me, I would have. what you said? If they asked you, what you would have said? I've done my research on LinkedIn or something, but I don't think that's a diplomatic Glassdoor, answer. But Glassdoor, salary insights वगैरह होता है ना? हाँ sir, Ambition Box, Glassdoor, Ambition etc. Box, Ambition Box, Google, ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है? सीनियर तो मिलेगा नहीं डीबीएस बैंक में ज्यादा सीए, तो वो बोलने से हाँ. लगेगा कि लाइक दिस इज समथिंग विच इज Sir, वेरी. I think that what do you know about our bank made me crack this हाँ, first round of interview. आप बैंक के बारे में I पूरा only अंदर think बताएगा ना. देखो, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इन्फोसिस हो, रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो, अंदर का इंफॉर्मेशन बताओ. ऐसा इंफॉर्मेशन बताओ उसको भी नहीं पता उसका बैंक के बारे में. ऐसा बताओ कि उसको भी नहीं पता, उसको लगता है कि आपने बहुत डीप लेवल का रिसर्च करके आया है. जैसे आईओसीएल में तो उसको 5 ईयर प्लान आपका ये है वो है, सीएफओ का नाम वगैरह पूरा सब कुछ पढ़ के जाओ कंपनी के बारे में, एनुअल रिपोर्ट पूरा स्कैन कर लो. तो हाई चांसेस है कि हाँ ये पूरा, इसको मेरा कंपनी के बारे में इतना पता है तो खुद का काम तो पता ही होगा. तो उसको जो इसको मेरा कंपनी के बारे में इतना पता है तो खुद का काम तो आता ही होगा. समझे? तो वो एक इंप्रेशन जाता है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है आपको, ठीक है? वो कंपनी के बारे में आपको एक वन बिग फोर में जा रहा है ना, तो केपीएमजी है, ईवाई है, तो वो लोग का वैल्यूज होता है जो कि आपको ना करियर साइड में मिल जाएगा कि हर बिग फोर का अलग अलग वैल्यूज होता है. वैल्यू थोड़ा अलग होता है तो वैल्यू पढ़ लेना. हर बिग फोर का अलग अलग वैल्यूज होता है. ईवाई का वैल्यू अलग है, केपीएमजी का वैल्यू कुछ अलग होगा, एथिक्स होता है ना कुछ वैल्यूज, तो वैल्यूज पढ़ लेना. चार चार वैल्यू रहता है सबका. मेरे को नहीं पता है, देख लेना गूगल व्हाट्सएप में डाल देना क्या क्या वैल्यूज है. हर बिग फोर का अपना अपना वैल्यू होता है, और अगर वो वैल्यू तुम चार बता दिया ना सही, तुम्हारा हाई चांस है तुमको ले लेगा. पता है? भले ही तुम्हारा टेक्निकल अच्छा नहीं किया, मान के चलो तुम्हारा टेक्निकल में 2-3 आंसर गलत बोल दिया, वाई वांट टू ज्वाइन ईवाई, और तुम बोला मैंने ईवाई का करियर पोर्टल में पढ़ा था ये चार चीज है, उसके अंदर में स्टोरी और देने लग गया ना कि ईवाई बिलीव्स इन गुड कल्चर, ऐसे करके देखिए पीपल मैनेजमेंट, दिस इज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस, ऐसे करके तो थोड़ा स्टोरी बना देना, दिस इज समथिंग आई लाइक्ड अबाउट द वैल्यूज, एथिक्स एंड वैल्यूज. तो ईवाई अभी नंबर 1 है ऑडिट में, लिस्टेड क्लाइंट का सारा ऑडिट इनके पास ही है, मेजर मार्केट शेयर है, अच्छा क्लाइंट आपको ईवाई में मिलेगा. 2-3 क्लाइंट पढ़ लेना बिग फोर का, 2-3 क्लाइंट का नाम पढ़ लेना जो लिस्टेड क्लाइंट है. वो पूछ लेगा कि तुमको इतना पता तो ये भी बता दो कि हम लोग कौन सा लिस्टेड क्लाइंट में डील करता है, ईवाई या केपीएमजी या पीडब्ल्यूसी या आपका डिलॉइट या बीडीओ, कौन सा लिस्टेड क्लाइंट का ऑडिट हम लोग करता है ये बताओ. तुमको इतना पता है तो अगर तुम वो बता दिया ना उधर में, तुम्हारा चांस एकदम हाई है कि तुमको ले लेगा वो. समझ रहे हैं मेरा बात को? उसको लगेगा पूरा ये तो मतलब होता है ना पूरा करके आया, पूरा रिसर्च करके आया, पूरा जासूसों का तरह रिसर्च करके आया कि आपके बारे में सब कुछ पता है हमको, आपको कंपनी. तो ये चीज है, नो अबाउट द कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ क्या था आपको इंपॉर्टेंट लगा? सर स्क्रीन शेयर करो ना सर. एक बार हम कर देते हैं तो. हम्म, और बताइए, नीचे लाए हम इसको. हाँ नहीं सर, फर्स्ट राउंड में आई डिडंट फील एनी अदर डिफिकल्टीज अदर देन दैट आप सारा व्हाट डू यू क्वेश्चन नो का अबाउट जवाब दे आवर पा रहा बैंक था? एंड. आपको सारा क्वेश्चन का जवाब पता था कि 2-3 क्वेश्चन होगा जिसका जवाब नहीं पता था? हुआ होगा, ये सब आता था. Sir, for that 11th question, I didn't say any answer. He only said the answer. व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस रोल? आर एन देयर बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर सीए? फाइनेंस रोल में जाने का मन है हमको क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑडिट टैक्स कर चुका है अपना सीए फर्म में. तो ऐसा बात नहीं कि मेरे को ऑडिट टैक्स पसंद नहीं है, पर मेरे को कुछ अलग चीज एक्सप्लोर करना चाह. ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं मेरे को ऑडिट टैक्स में नहीं जाना है, अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे बोलेगा तो नहीं. It's not that the case that I don't like the other profiles, but this profile is much more interesting and I always wanted to get into finance role. And banking sector is something which I really like about, okay. वैसे होता है ना बैंकिंग सेक्टर, यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो बोलते हैं ना बैंकिंग सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट करता है एचडीएफसी बैंक वगैरह, कोटक बैंक वगैरह कुछ, उसको थोड़ा लगेगा हाँ. तो बैंकिंग सेक्टर आई लाइक टू ट्रैक दिस सेक्टर. तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज बोल देना, 2-3 बोलता देना शेयर पर. अपना ये कंपनी का शेयर मत बताना कि कंपनी का शेयर होल्डर है, तुमको लेगा नहीं, बोलेगा शेयर बेचो पहले तब लेगा. पहले शेयर बेचो नहीं तो इंडिपेंडेंस का चक्कर हो जाएगा इन लोगों को. ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर आपको? डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस में क्या बोले आपने? डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? Sir, I asked how was your learning experience, sir, as you said. हम तो ये बोला Nothing much. था. हाँ,
मेरा एक्सेल सीट में सारा यही बोलो। ये सब तो डिफर टैक्स ऐसे डिफर टैक्स लाइबिलिटी ठीक ठाक ही है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो इनको पूछ लो, इन्होंने अभी दे के आया। लोग पूछो कोई Sir, क्वेश्चन में। eighth question, we have to work on our articleship experience a bit. I felt like that. Otherwise, we won't be able to answer that question at that point of time. व्हाट? यस। Eighth question, explain about any internal control lapses you identified and rectified during your article. आप क्या बोला इसमें लैप्सिस? लैप्सिस क्या बोला आपने? Sir, as I told you, I was in the internal audit team of a PSU. Na? In a PSU, expenditure will always have budget limits actually. So they have to try to stay in the budgets. But those people, they won't stay in the budgets, and they'll spend and pass accounting entries as much as they want. So we requested the project director to have the budget limits in the software only, and they can't pass accounting entries about the budget limit. So if they want to cross the budget, they have to get approval from the project director. That is the one thing we found, sir. And another thing I also told them is there was no scheme. The PSU is into affordable housing projects to the beneficiaries actually. That has to be segregated among the schemes, like which beneficiary is applicable to which scheme and is he eligible or not. And the main thing is they are not having any scheme eligibility document regarding each and every beneficiary. Not even having one scheme eligibility document why he is in that eligible for that scheme. So we requested every beneficiary who is getting the payment should have the eligibility document with along with the payment. And I told him those two. ये सब आंसर आप ना वर्ड फाइल में ना ऐड करके हम लोग को दे देना, ठीक है? हाँ सर। इजी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है? हम्म। ग्रुप चाहता है ये सब हो जाए, है ना? और क्या था, ये सब इंटरनल कंट्रोल तो इजी, हम देखा इंटरनल कंट्रोल पूछते रहता है। एक चीज देखा, ऑडिट कितना काम आता है, मतलब ऑडिट कितना काम आता है, बोला ऑडिट नहीं जानना है, ऑडिट सब जगह ही काम आता है, ये याद रखना ये बात। जो करवाते वही आता है, जो करवाए वही आता है। कंट्रोल हम पूछते हैं, मतलब कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या आता है, इंटरनल कंट्रोल यही आ जाता है घूम फिरा के। इसलिए ऑडिट हर जगह ही काम आता है, चाहे किधर भी चल जाओ तुम्हारा ऑडिट पीछा नहीं छोड़ेगा तुमको। सीए है तो तुमको ऑडिट ही घुमा फिरा कर पूछेगा वो। बस वो जीएसटी पूछा है, जीएसटी ज्यादा पूछा नहीं है, ठीक है? ये सब का आंसर आंसर निकाल लेना, ठीक है? अब लोग ये यूट्यूब निकालना है तो इसलिए आंसर नहीं निकाला। ये सबका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या बोला? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल। सर मैंने बोला प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव हाँ, कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव, करेक्टिव डिटेक्टिव है, कंट्रोल्स। करेक्टिव कंट्रोल। उसका एग्जांपल पूछा होगा। करेक्टिव कंट्रोल डिटेक्टिव का क्या होगा? एग्जाम्पल से डिडंट आस्क सर। डिटेक्टिव का क्या होगा सीसीटीवी मतलब? कैमरा, सीसीटीवी कैमरा डिटेक्टिव का। प्रिवेंटिव का कुछ होगा, प्रिवेंटिव का क्या होगा? प्रिवेंटिव का मींस एंटीवायरस, एक्सेस एक्टिविटी एंटीवायरस, लॉगिन सर। एंटीवायरस हो गया। और क्या होता है? एक प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, और एक और होता है पीडीसी, करेक्टिव। करेक्टिव सर। इंटरनल ऑडिट इज अ एग्जांपल ऑफ करेक्टिव कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट जो होगा करेक्टिव कंट्रोल। वेरी गुड। ये सब चीज लैप्सेस हो गया। कंट्रोल ही ज्यादा करके पूछा है, लोग कंट्रोल ही करवाएगा आपसे। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अरे 5 पॉइंट होगा ना, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स सर। आप इसका कौन बोल रहा है? ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस का आप थोड़ा एक बार आंसर भी कर लेना, तो ये बहुत काम आएगा। कॉल आपका naukri.com से है ना, ऑप्टिमाइज करने से? तो naukri.com हाँ क्या सर। ऑप्टिमाइज किया वो बताइए तो मेरे को। naukri.com में क्या लिखा था इससे आ गया कॉल? मुझे अच्छा, पता नहीं सर, मैंने क्या लिखा। याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही आ गया। हाँ तो कॉल आया तो मतलब ईमेल भी आया होगा, ईमेल आईडी, ईमेल आया था क्या? ईमेल, ईमेल नहीं आया सर, कॉल। आई गॉट अ कॉल आफ्टर दैट। I got a mail for the scheduled interview. That's it. I didn't get any email. सीधे कॉल, ईमेल तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफर लेटर कैसे आया फिर आपका? ऑफर लेटर डीबीएस पोर्टल में अपलोडेड है। ईमेल नहीं आया आपके पास? ईमेल भी आया। ईमेल आया ना? हाँ, ठीक है। हाँ
ईमेल आया। ईमेल तो आना चाहिए, सिलेक्शन ईमेल तो आना चाहिए। बहुत सारे ईमेल्स आ गए सर, 10-15 वो ईमेल्स है। ठीक है। नहीं, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो वो तो इन मेल का तो आया होगा ना कि जूम मीटिंग हुआ है, किसमें हुआ, मीटिंग हाँ किसमें हुआ था? हाँ, मीटिंग किसमें हुआ था टीम्स आपका? टीम्स में हुआ। टीम टीम, सर। टीम चलाना सीख लो आप लोग। हाँ, टीम, टीम नहीं आता चीज, उसमें वीडियो हाँ, ऑन रखना अपना। ऑफिस में आदत है सर, हाँ वीडियो भी ऑन रख। हाँ, वीडियो ऑन रखना है। और ड्रेसिंग सेंस भी बहुत हम्म। असली है ये सब चीज। ठीक है, तो ये सभी है, देख लो। इसका आंसर आप हमको कल एक बार दे देना, टेंशन आंसर कर लेके। और वो जो ईमेल ईमेल आया है अगर बता देना, और भी पूछ लेना डीबीएस बैंक को कि और भी यहाँ पर में है, सबको लगा देंगे डीबीएस बैंक में। ठीक है, ईमेल वगैरह कर देखना। ठीक है, वी हैव टू हेल्प ईच अदर, वही है। कहीं पर और भी किसी का इंटरव्यू क्लियर हाँ हो सर। तो हम लोग को बताते जाइए, तो इंटरव्यू क्लियर होने से अच्छा है, जल्दी जल्दी काम सेटेगा। एक बार इंटरव्यू क्लियर हो गया भाई, हो गया काम खत्म तुम्हारा। राम राम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इंटरव्यू क्लियर कर। तो ये इंटरव्यू क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आप लोग दूसरों को गाइड करो, वही चीज है, तो वी वांट कि हाँ वैसे करके जल्दी जल्दी काम हो जाता है। सर आई सर ये ऑल्सो फेल क्वेश्चंस भेज दीजिएगा दैट। ना थोड़ा। हाँ जी, क्या चीज? क्वेश्चन तो मैं ये दे क्वेश्चन भेज देगा। क्वेश्चंस दीजिए। भेज दीजिएगा ना। हाँ, ये तो हम ग्रुप में भेज देगा। आंसर भी है ना, आप थोड़ा आंसर बना लेना इसका, आंसर ही लैब्स वैब्स का एक बार हाँ के। हाँ, ठीक। ये वाला चीज। ठीक है, तो हम ये वाला तो भिजवा ही देगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है बाद में। ठीक है, बढ़िया है ये वाला। हम लोग का यहाँ से बहुत फायदा हुआ, मतलब यहाँ से सब मोटा मोटी आपका काम हो गया, मतलब जैसे जैसे बताए वैसे वैसे काम होते गया हमें, है ना? है ना? तो बिल्कुल। जीएसटी के बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा। लाइक वो लोग रिकंसिलिएशन पूछ रहे हैं ना, लाइक रिकंसिलिएशन पूछा, जीएसटी पूरा हाँ, मैकेनिज्म पूछ रहा है। ई तो वो इनवॉइस थोड़ा अकाउंट ब्रीफ में बताना। क्वेश्चन। पेबल सर। हाँ, इसका क्या आंसर बोला आपने जीएसटी मैकेनिज्म का? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द जीएसटी सर मैकेनिज्म अच्छा बैंक। क्वेश्चन। बैंक्स में तो सर वो आई ना। टोल्ड हम्म, sir, from bank's point of view, banks won't have any taxable supplies, na sir. They will be less. So I focus पर more नेगेटिव on लिस्ट होता है how ना to avail. जीएसटी में एक नेगेटिव लिस्ट होता है। Exempt supply ज्यादा है सर बैंक के लिए. Exempt supplies will be बैंक more. टू बैंक। इंटरेस्ट आईटीसी इंटरेस्ट का और भी सर डिस्काउंट। पॉइंट है 50%। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो तो एनबीएफसी में होता है, ये एनबीएफसी थोड़ी ना है, डीबीएस इंडिया लिमिटेड। एनबीएफसी में होता है वो, ये तो कमर्शियल बैंक है। आईटीसी का भी नहीं पॉइंट है सर, सर क्रेडिट 50%। कार्ड, सर फिफ्टी वो फिफ्टी क्रेडिट नहीं कार्ड सर वो परसेंट फिफ्टी आपके चार्जेस में, परसेंट रहता है डिस्काउंट सर हो. बैंक में भी वो 50% क्रेडिट कार्ड रहता है चार्जेस सर में बैंक लगता के है लिए. ना। सर रहते हैं, वो ऑप्शन 50%। रहता है बैंक के पास। हाँ. एक चीज बताओ, जैसे आपने इतना सारा सवाल दिया तो कोई सवाल हुआ होगा जिसमें आप अटका हो, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें आप हेजिटेट किया होगा? ऐसे हुआ था 2-3 क्वेश्चन में आंसर ही नहीं पता था आपको, आई डोंट नो दिस आंसर, ऐसे हुआ था क्या 2-3 बार कि सर नहीं हुआ आपके साथ? जिस शेयर स्क्रीन हाँ, शेयर करो ना सर. हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, ये हम लोग जानबूझकर करते हैं, बस चेहरा भी देख ले लोगों को। 14 लाख के लिए इतना सारे हम। नहीं, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, आप बोल ही नहीं पाए आंसर वहां पर में? Sir, what is the risk do you think of while availing GST? But I didn't think of anything at that यहाँ point पर of है, time. व्हाट इज द रिस्क ऑफ अवेलिंग द, व्हाट इज द रिस्क डू यू थिंक ऑफ What is अवेलिंग? the risk do you think of while availing जब GST? आप जीएसटी इनपुट ले रहे हैं तो सामने वाला ने फाइल किया है कि रिटर्न, अगर सामने वाला फाइल नहीं करेगा हाँ, रिटर्न, ये भी आंसर है सर, बट आई डिडंट. हाँ, रिकॉर्ड सामने वाला रिटर्न फाइल करेगा तभी तो आपको क्रेडिट मिलेगा, इस पर सेक्शन 16 बोलते हैं, ये वाला चीज। हाँ, I तो couldn't दो दिन, recall at that point of दो दिन को time. लगता है आपको खाली ऑडिट आता है, पर जीएसटी में हम 2 साल काम किए, जीएसटी में काम कर लिए। ठीक है। 180 डे में पेमेंट होना चाहिए, ये भी है ना। हाँ, हाँ सर, पेमेंट भी होना चाहिए। राइट राइट, पेमेंट भी If होना we चाहिए। take input, then we are सेक्शन 16 देखना trader पड़ता है has to pay ना, the देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन हाँ निकल सर, गया, trader has to pay the सेक्शन money. 16 जीएसटी का टूबी ध्यान में भी बनाने लगे। रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सेक्शन 16 का 4 पॉइंट बता देना, सेक्शन 16 होता है ना, उसमें 4 पॉइंट होता है कि आपको हाँ सर, इनवॉइस होना 4 पॉइंट चाहिए, हो गए. इनवॉइस होना चाहिए, हाँ, सप्लायर wise होना चाहिए। बड़ा वो बड़ा वो सब चीज वो सब बढ़ाना है, और वो सामने तो वाला क्रेडिट जीएसटी टूबी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो। रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो सब बता हम्म. तो वो ले लेगा उसे करके। तो इसमें दिक्कत आया आपको using ना, for आप क्या बोला? आप बोला क्या उसको, जब आपको आंसर नहीं पता तो आप बोला क्या, वो जरूरी है जानना, व्हाट यू सेड टू। हाँ, I told him that sir, I couldn't recall at this point of time. हाँ. हाँ, ये हम आपको बताया था इजी बोलने के लिए, आई कुड नॉट रिकॉल। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या पर हमको दिक्कत आ रहा था ज्यादा?
अच्छा फर्स्ट राउंड में ये सर VP राउंड में I felt little difficulty when he said actually what I did is when he asked about deferred tax asset or liability I should have and he also asked tell it from the bank's point of view. So bank's को Ind AS is not applicable. I should have stopped at accounting standards. And in some nervousness, I also told him that Ind AS this is not the treatment. And then he asked me about what is the difference between the treatment of deferred tax between Ind AS and AS, and I couldn't recall it that point of time. इसका तो हमको जितना आइडिया है कि एएस में क्या होता है, टेम्पररी डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस होता है। यहाँ पर मैं नाम चेंज करके इसका कुछ अलग कर दिया, यहाँ पर नामकरण अलग हाँ है। सर the difference is Ind AS में बैलेंस शीट अप्रोच है ना सर। बैलेंस शीट अप्रोच है। इंडेस में बैलेंस शीट अप्रोच है, इंडेस इज अबाउट बैलेंस शीट अप्रोच और वो आपका पीएनएल अप्रोच है, टेम्पररी P&L और process. If I hadn't mentioned the word Ind AS over there, he wouldn't have asked me that question. डिडक्टेबल, और उसको था बताना डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस कुछ होता है, डिडक्टेबल और एक तो और होता है वर्ड। तो ये चीज है, सब आंसर जाना जरूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस हाँ। जरूरी। कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोल तो नहीं आता है। जहां पर वो बोल रहा था आप गलत आंसर बोल रहे थे, वो टोका होगा आपको कि आप गलत आंसर बोल रहे हो, तब चुप हो गया फिर ना, वही बात है। राइट, आर्ग्यू नहीं। They asked 2-3 entries also, like basic entries. I didn't write them over there. वो भी लिख हाँ देना। जीएसटी का एंट्री पूछता है, जीएसटी का एंट्री पूछता है। GST का है फिक्स्ड एसेट में he asked something. इंश्योरेंस क्लेम है हमारा, फिक्स्ड एसेट इज डैमेज, what will you record? What entry will you record at that time? Like he asked, I didn't write them all because I couldn't record it exactly. आंसर बोल दिया था सही। वो भी याद नहीं सर, that's why I didn't. ठीक है, कोई बात। आप है ना ये एक बार अपडेट और कर लेना आंसर भी, तो आंसर वंसर आपका हेल्प हो जाएगा। हाँ देखता है डीबीएस में हो जाए तो। और डीबीएस में देखना क्या है, क्या सिस्टम है, क्या अपन लगा रहे हैं, दिक्कत है। और देखो क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन देखा क्या है, क्वेश्चन A to Z हम जो करा रहा है वही है, कंट्रोल 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 ही है ज्यादा करके, आधा से ज्यादा तो कंट्रोल में ही है। अब 2-3 बिहेवियर क्वेश्चन है, 2-4 गंदा गंदा DHT क्वेश्चन है, और फ्रॉड Sir, ऑब्जर्व। one more thing I did in first round. डू हैव एनी एक्सपीरियंस इन फाइनेंस? नो ही बोला होगा इसका तो आंसर आपने, कि एक्सपीरियंस हाँ नहीं नो है। ही बोला because I don't have any experience. असाइनमेंट बोल देना है बस, असाइनमेंट बोल देना है। हाँ Sir, first round में they asked me what was your most difficult subject in CA final. क्या And बोला I आपने? told them auditing, and they asked me why are you then interested and why did you come for interview if you are not interested in auditing? Okay, then what you said? And then I told them, sir, it was the difficult subject for me, but it is not now, and I also scored very good marks in auditing in CA final, and I cooked up some story. Okay, बच गया आप। उसको बोला कोई डिफिकल्ट लगा ही नहीं हमको। सारे डिफिकल्ट था। I was not in my senses like that. I told him that auditing was difficult subject before applying. डिफिकल्ट सब ही था, So, इसी कुछ होता ही नहीं है। what do you know about our DBS Bank? In that question and answer only, the full job is done, sir, it seems. हाँ, वो असली हाँ क्वेश्चन है, दे आर चेकिंग कम्युनिकेशन स्किल। Yeah, बैंक का और चेकिंग। very, देखो मैं आपको very बार बार calm and composed answers. आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी, हम दे नो कि योर सीए प्रेशर, तो धीरे धीरे टेक्निकल नॉलेज एवरीबॉडी विल इंप्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट? दे वांट समबडी हु कैन हैंडल द क्लाइंट्स, to handle the clients you need to speak with mouth, they are checking that. If you are able to speak with mouth with fluency and not getting frightened and all in interview, high chances they will take you here and there. तो कम्युनिकेशन स्किल में ही आंखें घुस जाते हैं, वो देख रहा है कि ये सामने वाला
और आप बोल रहे शिल्पा पतला जैसे छोटा चश्मा पहन लो थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा लुक बना के जाओ ऐसे करके, बस ये सब ही देखते हैं वैसे। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, और बाकी तो कुछ तो बोल ही देगा उधर में, मुंह चुप मत रखना बस। आंसर आता है बोलो आता है, नहीं आता तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, क्लास 12 में होता था, टीचर बोलता था स्टैंड अप स्टैंड अप, और आपने आंसर नहीं बोला, आप डर गया, वो नहीं करना है। अभी भी भोजन वही फोमो में रहता है, नहीं आता तो बोलता है आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आता है तो बोलते रिकॉल, पर फटाफट बोलना है, रैपिड फायर वो खेलना है। इससे क्या होता है कि उसको लगता है कि हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बाकी नॉलेज तो सबको, उसको लगता है मेरे को भी कितना ही आता है, इसको कितना आएगा, मेरे को कितना। तो नॉलेज से ज्यादा वो लोग आपका देख रहा है बोल रहा कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल ही चेक कर रहा है वो लोग घुमा फिरा कर। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आंसर स्मार्टली बोलना बहुत जरूरी है, समझ में है ना दिव्या कुमारी? ठीक है, या लिखिता, लिखिता समझ में है लिखिता? कम्युनिकेशन स्किल या वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। 10 जगह देके इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा लगेगा उसको, वीडियो ऑडियो क्वालिटी सही लगेगा, और थोड़ा सुंदर होके जाएंगे उधर में, तो वही ले ही लेगा वो लोग। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी तो नॉलेज, और उसको आंसर बोलना है, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता है। और कंपनी के बारे में प्लीज पढ़ के जाइए, बोल रहे EY, KPMG, BDO, ग्रैंड थॉर्टन, अभी तो कैंपस में भी आ गया, तो कंपनी के बारे में पूरा डिटेल रिसर्च कर लीजिएगा, समझ गए ना? तो उसमें ग्रिल भी नहीं करता, पता है, थोड़ा बहुत ग्रिल करेगा तो इतना तो नहीं पढ़ा मैंने, सबसे बड़ा बात है, थोड़ा बहुत बता के निकल जाएगा। वो आपको ग्रिल किया था, ये DBS बैंक में ग्रिलिंग किया था? नहीं किया होगा ना? किया नहीं ग्रिलिंग? नहीं करेगा उसमें, ग्रिलिंग नहीं करेगा। हाँ, पर गलत इन्फॉर्मेशन मत दे दीजिएगा, ये चीज है। सर। ठीक। और ये क्वेश्चन कोई करके नहीं जाता, पता है, ये क्वेश्चन कोई करके नहीं जाता है, कंपनी के बारे में पढ़ता Sir, नहीं है। they're asking questions from our answers only. हम्म। They're asking questions from our answers only. From our mouth only, they are making. हाँ। They're framing new questions actually. हाँ, और याद रखिएगा हमेशा, वाई शुड बी हायर यू, ठीक है, टू हायर तो मी उसमें बिकॉज आई क्या एम हार्ड बोलते हैं? वर्किंग, आई एम हार्ड वर्किंग, प्लीज हायर मी, ऐसे नहीं करना है और में। Sir, तो for क्या that बोलते हैं? question, what I did, हाँ बोलिए। they sent me the job description. In that job description, last 4 lines, they told what do some. I will tell you. हाँ हाँ बोलिए। They used so many adjectives like team player and motivation something, and I also used them. यू सेड आई एम अ गुड इन टीम मैनेजमेंट, आई टोल्ड दिस ऑल्सो ना कि आपको यही बोलना है, टीम मैनेजमेंट, आई हैव अ गुड टीम मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल्स, सिक्स बोल दिया तो दिस रोल टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल विच आई थिंक आई हैव। Sir, in the job description, they also wrote some technical competencies and core competencies. हाँ, So, कोर in कॉम्पिटेंसी। the job description, core competencies and technical competencies and other culture and behaviors. आप मेरा वीडियो भी देखा होगा, वाई So, शुड बी हायर। मेरा वीडियो में हम वही बोला कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में है, मेरे को लगता है मेरे को सब आता है ये सब काम। So I think I have read the सब job नहीं आते, description. but वैसे ही बोलना, देखिए sir, I read the. I have read the job description of your company, and I feel that I have the requisite skills and experience which you require for their profile, and I have handled such similar projects in my past ऐसे करके, and this is one of my dream companies, so I will definitely try my best to do well in this organization. So that's why I feel you should hire me. So job description देखा, उसमें जो भी चीज है वो मेरे को लगता है मैंने अच्छा काम किया है, मैंने पास्ट में भी इस तरीका का काम किया है इधर में जो है, दैट इज व्हाट यू हैव टू से। एंड दिस माई ड्रीम कंपनी, दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम कंपनी, एकदम ड्रीम कंपनी मत बोलते ना, वन ऑफ माई ड्रीम कंपनीज बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू बैंक कल्चर, ऐसे करके उसको बोलना। जॉब जो रोल इज ऑल्सो फाइनेंस, आई लाइक टू गेट इनटू फाइनेंस। तो बोलेगा वाई फाइनेंस, बिकॉज ऑलरेडी हैव डन ऑडिट टैक्सेशन, ऑलरेडी हैव डन, सो आई वांट टू गेट इनटू हियर। बोलेगा तो बाद में भी तुम ऑलरेडी फाइनेंस हो जाएगा, नो इट्स नॉट द केस, फाइनेंस इज ऑलरेडी लिक्विडिटी, ठीक है। ये जब याद रखना, बिहेवियर क्वेश्चन ही सबसे असली होता है, बिहेवियर क्वेश्चन असली होता है, याद रखिएगा। टेक्निकल तो होता ही है असली, पर इंडस्ट्री में ना बिहेवियर क्वेश्चन ज्यादा असली होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग को टेक्निकल नॉलेज तो होता ही नहीं है ना इतना, टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं है इतना उन लोगों को खुद को, तो वो लोग तुम्हारा बिहेवियर ही तो देखेगा,
टेक्निकल तो हाँ में हाँ मिला देगा, वो ये है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। और जो आपका इंटरव्यू लिए वो सीए थोड़ी ना होगा, इंटरव्यू लिए सीए है वो, मे बी नॉट। सीए सीए फर्स्ट था वो, राउंड सर, सेकंड राउंड सीए सर, लिंक्डइन में चेक कर लिया मैंने, व्हाट आर दे। सीए था कि सीएस था? सीए सर, सीए। दोनों सीए था ना, ठीक है, बढ़िया है। हाँ मेन है इंडस्ट्री में आपको कम्युनिकेटर में तो आप ये भी नॉलेज अपना, और थोड़ा स्मार्ट आंसर देना है, ठीक है, वही चीज है। ऐसे वाई शुड बी हायर यू, और सब सोचने लग गए, गंदा लगेगा, रिजेक्ट करने का काम नहीं करना, ये सब क्वेश्चन में सोचने नहीं लग गए, नो वाई शुड बी हायर यू, सोच के नहीं आया, ये गंदा लगेगा ऐसे करने से। वाई शुड बी हायर यू, सोच के नहीं आया हम तो, डोंट हायर मी, हायर समबडी। तो ये सब चीजें, ये सब चीजें सोचने मत लग जाना, बाकी इस क्वेश्चन में पहले ही सोच लेना, ये सब क्वेश्चन होता है ना स्ट्रेंथ वीकनेस, वहां पर बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, पहले से जो भी है बोल देना ओवर में। स्ट्रेंथ तो बोला ही है, टीम स्पिरिट, लीडरशिप स्किल, वीकनेस बहुत ही दिया बस। मेरे को तो बिहेवियर क्वेश्चन ही अच्छा लगता है, टेक्निकल अच्छा नहीं लगता मुझे। टेक्निकल, सभी को सेम सर, एवरीबॉडी सेम। ठीक है, ये मीटिंग लिंक खत्म हो जाएगा तो इसको इधर ही एंड कर रहा है, आज सेशन इधर ही एंड कर देता है, ठीक है, कल और लेगा अपने का सेशन, आप ना वो दे देना मेरे को वीडियो का वो भी हाँ आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टिल द एंड।